मोहम्मद बाहर निकलो, जब तक मैं तुम्हारा सर कलम न कर लूं मेरा दिल ठंडा नहीं होगा। اے اللہ کے نبی کی بیٹی بی بی فاطمہ، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دے دیں۔ اے اللہ کے نبی کی بیٹی، اللہ نے آپ کے لیے جنت سے کھانا بھیجا ہے۔ کیا تم لوگ واقعی یہ سمجھتے ہو کہ آسمان سے کھانا اتر سکتا ہے، وہ بھی فاطمہ کے لیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ محمد کی بنائی ہوئی کہانی ہے۔ اے محمد باہر نکلو، جب تک میں مدینہ کے آسمان پر رمضان کی خوشیاں یوں پھیل رہی تھیں جیسے روشن چراغ ہر طرف نور بکھیر رہے ہوں۔ ہر طرف سحری کی تیاریاں تھیں، ہر گھر میں عبادت اور برکت کا سما بندھا ہوا تھا، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ایک عجیب سکون اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہوں نے پوری رات سجدے میں گزار دی تھی۔ اب جب روزے کی نیت سے سحری کرنے آگے بڑھیں تو دیکھا گھر میں صرف ایک بوند پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے وہیں چند گھونٹ پانی پیا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے مولا، یہ روزہ تیری ہی رضامندی کے لیے ہے، اگر تو ہمیں تنگی بھی دے تو وہ بھی تیری رحمت ہی ہے۔ ابھی دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ مسجد نبوی سے فجر کی پیاری پیاری اذان گونج اٹھی، جیسے پوری مدینہ نگری کو عبادت کے لیے پکار رہی ہو۔ فجر کی نماز ادا ہو چکی تھی اور آفتاب مدینہ کے آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی بکھیر رہا تھا۔ کچھ صحابہ مسجد نبوی سے باہر نکل چکے تھے اور کچھ تجارت اور روزی کی تلاش میں روانہ ہو رہے تھے۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھر کی تنگی اور بچوں کی بھوک سوچ کر روزی کی تلاش میں نکل پڑے۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے رات بھر بس پانی پر گزارا کیا تھا، پھر بھی گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مشغول تھیں۔ تبھی حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ننھے ننھے قدموں سے اپنی امی کے پاس آئے اور معصومیت سے بولے، اماں جان، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دیجئے نا، اب تو بھوک سہن بھی نہیں ہوتی۔ یہ سنتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں بھر آئیں، دل ممتا سے چھلک اٹھا، مگر بچوں کے سامنے مسکرا کر بولی، میرے پیارے بچوں، یہ دنیا تو ایک امتحان ہے، تھوڑا صبر کرو، انشاءاللہ تمہارے ابا جان کچھ لے کر آئیں گے۔ یہ سن کر چھوٹے حسن اور حسین مسکراتے ہوئے چلے گئے، مگر ان کی آنکھوں میں افطار کا بے قرار انتظار صاف جھلک رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وہی حال تھا، بھوک سے سر چکرا رہا تھا، مگر لبوں پر صبر اور دل میں اللہ کی یاد تھی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، تو ہی ہمارا رزق دینے والا ہے، اے اللہ، ہمارے بچوں کو صبر کی طاقت دے اور ہمارے ایمان کو اس آزمائش میں بھی مضبوط رکھ۔ اس سخت امتحان میں بھی ان کے دل میں نہ کوئی شکوہ تھا، نہ گلہ، بس صبر، شکر اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دھوپ میں روزی کی تلاش میں در در بھٹک رہے تھے۔ سورج اب آسمان کے بالکل بیچ میں آ چکا تھا، مدینہ کی زمین تپ رہی تھی، لیکن ان کے دل میں گھر والوں کی فکر جیسے ایک آگ کی طرح جل رہی تھی۔ راستے میں وہ ایک صحابی کے دروازے پر پہنچے، سلام کیا اور بولے، بھائی میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، کیا آپ کے پاس کوئی کام ہو جس سے کچھ کما سکوں؟ وہ صحابی اداس ہو کر بولے، یا علی، اللہ کی قسم، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو ضرور دیتا، مگر میرے گھر کا چولہا بھی کئی دنوں سے ٹھنڈا ہے، میں خود بھی بھوکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھیں بھر آئیں، مگر پھر بھی صبر کے ساتھ مسکرائے اور بڑے نرم لہجے میں اس صحابی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، یقیناً اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنائے گا۔ اس کے بعد وہ پھر سے کام کی تلاش میں نکل پڑے۔ کچھ دور چلنے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ شہر کے کنارے ایک امیر تاجر رہتا ہے، اگر میں اس کے پاس جاؤں تو شاید کوئی کام مل جائے۔ یہی سوچ کر تاجر کے گھر کی جانب بڑھ گئے۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر کھڑی حضرت علی کے لوٹنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں رحم اور بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت چھوٹے حسن اور حسین اپنی معصوم سی صورت لیے آہستہ آہستہ اپنی امی کے پاس آئے اور نہایت ہی معصومیت سے بولے، اماں جان، ابا جان کب گھر آئیں گے؟ بھوک سے برا حال ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت فاطمہ کا دل پسیج گیا، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اپنے بچوں کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے صبر کیا اور بولی، میرے بچوں، یہ دنیا تو بس ایک امتحان ہے، تھوڑا صبر کرو، انشاءاللہ تمہارے ابا جان کچھ لے کر آئیں گے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ سن کر تھوڑی تسلی لے کر واپس چلے گئے،
मगर दिल में इफ्तार का बेकरारी से इंतजार धड़क रहा था। इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस ताजिर के घर पहुंचे। सलाम अर्ज करके बोले, भाई क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? मैं मेहनत मशक्कत करने के लिए तैयार हूँ। वो अमीर ताजिर कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, हाँ मेरे खजूरों के बाग में कुछ काम है, अगर चाहो तो कुछ घंटे काम कर सकते हो, मगर एक शर्त है, मैं तुम्हें मजदूरी के बदले पैसे नहीं दे सकता, हाँ कुछ खजूर दे सकता हूँ। ये सुनते ही हजरत अली के जहन में घर की भूख और बच्चों की तड़प कौंध गई। दिल कांप उठा, आंखें नम हो गईं, मगर उन्होंने बिना किसी झिझक के उस काम के लिए हामी भर दी। फिर वो उसी बाग में पहुंचे और मालिक के कहे मुताबिक तन्हा ही सारा काम पूरा कर दिया। घंटों मेहनत के बाद जब वो वापस उस ताजिर के पास पहुंचे तो अर्ज किया, मैंने आपका सारा काम पूरा कर दिया है, अब मेरी मजदूरी अदा कीजिए। ताजिर ने कुछ खजूर उनके हाथों में रख दिए। खजूर पाकर उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। वहीं खड़े खड़े उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाया और दुआ की, ऐ अल्लाह तू ही हमारा रिज्क देने वाला है, अगर तू हमें आजमाना चाहता है तो हम सब्र करेंगे, मगर हमारे ईमान को हमेशा मजबूत रखना। ये कहकर वो तेजी से अपने घर की तरफ रवाना हो गए। शाम ढल रही थी, सूरज अपनी आखिरी रोशनी बिखेर रहा था और मदीना की फिजा इफ्तार की तैयारियों से महक रही थी। थके हुए जिस्म के साथ जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए तो उसी वक्त मस्जिद नबवी से अजान की प्यारी आवाज गूंज उठी। घर में इफ्तार के लिए बस कुछ खजूर और थोड़ा सा पानी था, मगर उस घर में अल्लाह की रहम और बरकत की दौलत थी। सबने मिलकर बैठकर इफ्तार किया। छोटे हसन और हुसैन को 2-2 खजूर दिए गए और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी वही खजूर लिए। अभी वो सब इफ्तार करने ही वाले थे कि अचानक दरवाजे पर एक सिसकती हुई आवाज गूंज उठी, अम्मा जान मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, भूख से बुरा हाल है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल नर्म था, रहम से भरा हुआ। उन्होंने अपनी भूख और तकलीफ की परवाह किए बगैर फरमाया, ऐ मेरे मेहरबान शौहर हमारा इफ्तार इस भूखे को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ताज्जुब से पूछा, फातिमा फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराकर बोली, मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूंगी। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हो गए। आंखों में अजीब सा सुकून भी था और गम भी, मगर बिना कोई और बात किए उन्होंने सारा खाना उस भूखे को दे दिया और हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह ऐ मेरे रब हमारे इस छोटे से ईसार को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अगले रोज के रोजे के लिए भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सिर्फ पानी से सहरी की। सुबह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ा सा आटा लेकर घर लौटे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसी आटे से कुछ रोटियां तैयार की। दिन गुजर गया और इफ्तार का वक्त करीब आ गया। मदीने भर में इफ्तार की रौनक थी, मगर हजरत फातिमा का घर सादगी और सुकून का मरकज था। रोजे से थीं, मगर इफ्तार के लिए बस चंद रोटियां और थोड़ा सा पानी मौजूद था। फिर भी उस घर का मंजर सब्र, शुक्र और अल्लाह की रहमत का एक अनोखा नमूना था। छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा अब्बा जान के साथ लौटे। सब एक साथ इफ्तार के दस्तरख्वान पर बैठे। सबको सिर्फ 2-2 रोटियां दी गईं। अभी सब इफ्तार के लिए हाथ बढ़ाने ही वाले थे कि बाहर से एक रहम भरी लरजती हुई आवाज आई, या अहले बैत मैं 3 दिन से भूखा हूं, सुना है तुम अल्लाह की राह में देने वाले हो, अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे भी दो, मैं भूख से बेकरार हूं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बिना लम्हा घंवाए निहायत रहम दिल अंदाज में हजरत अली से कहा, ऐ मेरे सरताज ये रोटियां इस भूखे को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ताज्जुब से पूछा, फातिमा फिर तुम क्या खाओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, अगर मुझे भूख लगी है तो ये भी तो उसी भूख की तकलीफ से गुजर रहा है। हम इस दुनिया के आराम के लिए नहीं आए, हम तो अल्लाह की रजा के लिए जीते हैं। ये सुनकर हजरत अली का दिल भर आया और बिना कोई और सवाल किए उन्होंने वो रोटियां उस भूखे को दे दी। अपने दिल ही दिल में वो कहने लगे, ऐ फातिमा क्या तुम जानती हो तुम कैसी अजीम आजमाइश से गुजर रही हो? खुद भूखी रहकर दूसरों का पेट भर रही हो। यकीनन अल्लाह तुम्हारे इस ईसार को जरूर कबूल करेगा। दूसरों को खाना खिलाते हुए जो ईसार और सखावत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दिखाई, यकीनन अल्लाह के नजदीक वो बेमिसाल थी। ठीक उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल जाओ
मेरे महबूब हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फातिमा ने जिस तरह सब्र, सखावत और भूख की सख्त आजमाइश बर्दाश्त की है वो वाकई काबिल तारीफ है। उन्होंने खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाया। अब उनके घर में कुछ भी नहीं बचा। तुम जन्नत से उनके लिए रिज्क लेकर जाओ। अल्लाह का हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से खुशबूदार रोटियां, ताजा खजूर और शहद लेकर इंसानी शक्ल में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर तशरीफ लाए। उस वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ पानी पीकर अल्लाह की इबादत में मशगूल थीं कि अचानक बाहर से किसी के आने की आहट हुई और दरवाजे के पार से एक धीमी मगर साफ आवाज गूंजी, या अहले बैत। ये आवाज सुनते ही हजरत अली जैसे ठिठक गए। उन्होंने फौरन दरवाजा खोला तो सामने एक नूरानी सूरत वाला शख्स खड़ा था, आंखों में अजीब सी चमक और हाथ में एक बर्तन। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा, मैं अल्लाह का भेजा हुआ खास बंदा हूं। जिस तरह तुमने अपनी भूख सहकर दूसरों को खिलाया, उसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का रिज़्क भेजा है। ये सुनते ही हजरत अली का दिल कांप उठा, आंखें नम हो गईं। उन्होंने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो रिज़्क देकर वहां से रुखसत हो गए। हजरत अली खुशी खुशी घर के अंदर दाखिल हुए और बोले, ऐ फातिमा, देखो हमारा रब कितना मेहरबान है, हमारे लिए जन्नत से रिज़्क भेजा है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे आगे बढ़ीं और जब उनकी नजर उस जन्नती खाने पर पड़ी तो वो हैरत में ठहर गईं। उनकी आंखें नरमी और शुक्र से भर गईं और दिल ही दिल में कहने लगीं, ऐ अल्लाह, तू कितना रहम करने वाला है। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई मामूली खाना नहीं बल्कि जन्नत का खाना है। इतनी दिलकश खुशबूदार रोटियां, ताजा खजूर और शहद, ये सब अल्लाह की रहमत का नजारा था। इसी बीच छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा दौड़ते हुए आए और अपनी मासूम आवाज में पूछने लगे, अम्मा जान, ये खाना किसका है और ये आया कहां से है? हजरत फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, मेरे प्यारे बच्चों, ये खाना हमारा है, हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से भेजा है। हसन और हुसैन की मासूम आंखों में हैरत और खुशी का मिला जुला रंग उतर आया। अम्मा जान, क्या ये सच है? हजरत फातिमा ने नरमी से कहा, बिल्कुल सच है मेरे लखते जिगर, ये अल्लाह की रहमत है। ये कहते हुए उनकी आंखें अश्कों से भीग गईं। फिर सबने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और जैसे ही उन्होंने उस जन्नती खाने का पहला निवाला लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। हर निवाले में अल्लाह की मोहब्बत और कर्म की एक अलग ही लज्जत थी। मदीना में ये बात आग की तरह फैल गई कि जन्नत से खाना आया है। सब ये सुनकर हैरत में थे, क्या वाकई फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर जन्नत से खाना आया है? और ये बात खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंच गई। मदीने में बहुत से लोग इस खबर से बेहद खुश हुए, जैसे उनके दिलों में ईमान की रोशनी और तेज हो गई हो। मगर दूसरी तरफ वो लोग भी थे जिनके दिल मुनाफिक थे, जो सिर्फ दिखावे के मुसलमान थे और जिनके सीने में पहले से शक और हसद की आग भरी हुई थी। वो किसी तरह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हीं में से एक शख्स कुछ लोगों के पास गया और तंजिया लहजे में कहने लगा, क्या तुम वाकई ये मानते हो कि आसमान से खाना उतर सकता है, और वो भी सिर्फ फातिमा के लिए? कुछ सीधे सादे लोगों ने सुकून से जवाब दिया, अगर अल्लाह चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है, आसमान और जमीन उसी के इख्तियार में है। मगर उस मुनाफिक ने फिर सवाल उठाया, लेकिन सिर्फ फातिमा ही क्यों? जन्नत का खाना सिर्फ उनके ही घर क्यों आया? ऐसे शुबहात और सवालात मदीने की गलियों में तेजी से फैलने लगे। जब ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुंची तो आपने मदीने वालों को जमा किया और खिताब फरमाया, ऐ मदीना के लोगों, क्या तुम इस बात पर ईमान नहीं रखते कि अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए ऐसे करिश्मे और अजूबे कर सकता है? अगर अल्लाह ने शबे मेराज मुझे जन्नत तक पहुंचा दिया तो क्या वो मेरी बेटी के लिए जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? फिर आपने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। अल्लाह ने उसे जो मकाम और जो इज्जत दी है वो दुनिया में किसी को नसीब नहीं हुई। ये वाकया उसी इज्जत और कर्म का हिस्सा है। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह तलाक की वो आयत तिलावत फरमाई कि जो शख्स तकवा अपनाता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी जगह से रिज़्क अता करता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। ये सुनते ही हाजिरों की आंखें छलक उठीं। हर शख्स खामोश था और सहाबा का ईमान पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। मगर जब ये वाकया पूरे मदीने में चर्चा का मौजू बन गया
तो मुनाफिक और काफिरों के सीने पर सांप लौटने लगे। जलन और हसद की आग में जलते हुए उन्होंने अपने हम ख्याल लोगों को जमा किया और कहने लगे, देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को वो मकाम मिल रहा है जो अब तक किसी को नहीं मिला। अगर ये बात इसी तरह फैलती रही तो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घराने से और ज्यादा मोहब्बत करने लगेंगे और हमारी सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। उनमें से एक ने घबराकर पूछा, तो फिर हम करें क्या? उन मुनाफिकों ने फौरन कहा, लोगों के दिलों में शक और वहम पैदा करो। उन्हें कहो, ये बस एक कहानी है। शायद फातिमा ने कोई ख्वाब देखा होगा और उसे सच मान लिया। ये भी कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। और ये भी कहो, भला हमने तो कभी जन्नत का खाना देखा नहीं, तो कैसे यकीन करें? अगले ही दिन से मुनाफिक और काफिरों की टोलियां मदीने की गलियों में घूमने लगीं। वो घर घर जाकर अफवाह फैलाने लगे, ये सब झूठ है, कोई जन्नत का खाना नहीं आया, ये बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ किस्सा है। धीरे धीरे उन्होंने कुछ सादगी पसंद सहाबा तक भी ये बातें पहुंचा दी और कहने लगे, भाइयों, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, ये कोई सच्चा वाकया नहीं, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। मगर सहाबा-ए किराम ने बड़े इत्मीनान और यकीन के साथ जवाब दिया, जिस अल्लाह ने हमारे लिए आसमान से कुरान उतारा, क्या वही अल्लाह अपने प्यारे रसूल की बेटी के लिए जन्नत का खाना नहीं भेज सकता? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। ये सुनकर वो मुनाफिक और काफिर सहाबा के मजबूत ईमान और यकीन के आगे जैसे हार मान गए। इस तरह मदीने की गलियों में साजिशों और सच्चाई के दरमियान एक जंग छिड़ गई, मगर हक का परचम हमेशा बुलंद रहता है। और यूं ये बहस पूरे मदीने में फैलती चली गई। उस रात हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने कमरे में तन्हा बैठी, चेहरा नूरानी मगर आंखों में आंसुओं का समंदर। देर तक सजदे में सर झुकाए अल्लाह की इबादत करती रहीं और रोती रहीं। दिल ही दिल में सोच रही थीं, ऐ मेरे मौला, ये करिश्माई इनाम आखिर मेरे हिस्से में क्यों आया? मुझे तो इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो बस एक ही तमन्ना है, ऐ अल्लाह, हम सबको जन्नत में एक साथ जमा फरमा। फिर लरजते लब्बों से उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने मुझे वो इज्जत दी है जिसकी मैं हकदार भी नहीं। तूने अपने करम से जन्नत का खाना भेजकर ये दिखा दिया कि दुनिया की तंगी, दुनिया की भूख और दुनिया की परेशानी तेरी रहमत के आगे कुछ भी नहीं। ऐ अल्लाह, मैं तो तेरी बस एक अदना सी बंदी हूँ। मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा, मेरे शौहर की जिंदगी में बरकत अता फरमा और मेरे अब्बा जान को जन्नत के सबसे बुलंद मकाम पर जगह अता फरमा। सुबह मदीने में हलचल मची हुई थी। हर जुबान पर बस एक ही चर्चा थी कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर अल्लाह की तरफ से जन्नत का खाना उतरने का वाकया हुआ है। जब ये खबर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंची तो वो फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। दोनों अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह, ये वाकया हमारे लिए बहुत बड़ी निशानी है, इसने हमारे ईमान को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या हम उस जन्नती खाने का कुछ हिस्सा देख सकते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और नरमी से फरमाया, ऐ उमर, ये इनाम सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जिन्हें अल्लाह अपनी खास रहमत से नवाजता है। ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि सबक है सब्र का, तकवा का और अल्लाह पर तवक्कुल का। ये सुनकर सहाबा-ए किराम के दिलों में सुकून भर गया और ईमान और भी रोशन हो गया। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए। आप जानते थे कि आपकी फातिमा सिर्फ आपकी बेटी नहीं बल्कि उम्मत के लिए सब्र, तकवा और ईसार की सबसे बड़ी मिसाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ फरमाया, ऐ मेरी प्यारी फातिमा, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो। ये जन्नती खाना तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे मकाम का सबूत है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने शर्म और अदब के साथ सिर झुका लिया और नरमी से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो बस अल्लाह की एक कमजोर सी बंदी हूँ। ये सारा एहतराम, ये सारी इज्जत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से फरमाया,
हाँ, मगर अल्लाह अपनी खास रहमत उन्हीं बंदों को देता है जो सब्र करते हैं, तकवा अपनाते हैं और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। और यही वो सबब है जिसके बदले अल्लाह ने तुम्हें जन्नत के खाने का शरफ अता फरमाया। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु, हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा और हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हुमा को देखकर फरमाया, मैं कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हारे दिलों में जो मुकम्मल ईमान है वो हम सब के लिए हमेशा एक मिसाल रहेगा। ये सुनते ही हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, मगर होंठों पर हल्की मुस्कान खिल उठी। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से कहा, हम सब एक दिन जन्नत में बैठकर इसी खाने का लुत्फ उठाएंगे इंशाअल्लाह। ये सुनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ उठाए और बारगाह ए इलाही में दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मेरी फातिमा, मेरे अली, मेरे हसन और हुसैन और मेरी पूरी उम्मत को जन्नत के बेहतरीन नेमतों से नवाज। दुआ के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए। उसी वक्त बनी सलीम कबीले का एक शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुराना दुश्मन था, अकेला ही नबी पाक के घर के करीब आकर चिल्लाने लगा, ऐ मोहम्मद, बाहर आओ, जब तक मैं तुम्हारा सर कलम न कर दूं मेरा दिल ठंडा नहीं होगा। वो शख्स इसी तरह बेहुदा और बदतमीज बातें करता चला जा रहा था। ये मंजर देखकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अगर इजाजत दें तो मैं इस शैतान को अभी 2 टुकड़े कर दूं। मगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ लाए और सहाबा से फरमाया, तुम में से कोई इसे कुछ न कहे। ये बेचारा जानता ही नहीं कि अल्लाह कौन है, उसके नबी कौन है और इस्लाम की हकीकत क्या है। जब ये समझ जाएगा तो ऐसी बातें जुबान पर न लाएगा। फिर आप नरमी और मोहब्बत के साथ उस शख्स के करीब गए। बड़ी नफासत और कोमल लहजे में फरमाया, तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? देखो, ये आसमान, ये जमीन, ये इंसान और पूरी कायनात, सबका एक ही खालिक है। मैं तो बस उसी एक अल्लाह की बात करता हूं। मैं सिर्फ तुम्हें उसी अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं जो सबसे ज्यादा ताकतवर है और सारी मखलूक पर उसी का इख्तियार है। घमंड और नफरत छोड़ दो। अल्लाह से डरने वालों के लिए जन्नत है और मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचने की तलकीन कर रहा हूं। अगर अल्लाह का गजब आ गया तो कोई बचाने वाला ना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी नरमी, इतनी मोहब्बत और इतनी शफकत देखकर वो शख्स सन्न रह गया। कुछ देर खामोश रहा, फिर अचानक उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने कांपती आवाज में कहा, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं। मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये कहकर उस शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ थामा और कलमा ए तैयबा पढ़कर मुसलमान हो गया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उस नए मुसलमान भाई को अपने घर के अंदर तशरीफ लाने का इशारा फरमाया। अंदर बैठने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से पूछा, भाई, तुम्हारे घर में कौन कौन है और तुम किस तरह गुजारा करते हो? उस शख्स ने शर्म से सर झुका लिया और कहा, या रसूलुल्लाह, मैं बनी सलीम कबीले का सबसे गरीब आदमी हूं। दिन भर मजदूरी करता हूं, किसी तरह घर का गुजारा चलता है, अक्सर वक्त भूखे ही रहना पड़ता है। ये सुनकर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ देखकर फरमाया, क्या तुम में से कोई है जो इस भाई के लिए एक ऊंट वक्फ कर सके? इतना सुनना था कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु उठ खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास सिर्फ एक ही ऊंट है, वही मैं अल्लाह की राह में दे देता हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन बदला देगा। फिर आपने फरमाया, क्या तुम में से कोई है जो इस नए मुसलमान भाई के लिए एक पगड़ी का इंतजाम कर दे? हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने बिला झिझक अपनी पगड़ी उतारी और बड़े अदब से पेश कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, अली, अल्लाह तुम्हारी सखावत को कबूल फरमाए। फिर आपने फरमाया, क्या कोई है जो इस नए भाई के लिए खाने का इंतजाम कर सके? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह,
अगर आप इजाजत दें तो मैं कोशिश करता हूं कि किसी घर से खाने का इंतजाम कर लाऊं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। फिर हजरत सलमान फारसी उस नए मुसलमान भाई को साथ लेकर मदीने की गलियों में निकल पड़े। उन्होंने एक एक घर का दरवाजा खटखटाया, मगर हर तरफ से यही जवाब मिला, अल्लाह गवाह है, हमारे घर में भी आज कुछ नहीं है। आखिरकार थक हार कर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु ताला अन्हु हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पर पहुंचे। अदब से सलाम किया और अर्ज किया, ऐ बेटी, ये रसूलुल्लाह का नया मुसलमान भाई है। इसके खाने के लिए हमने पूरे मदीने में कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अगर आपके पास कुछ हो तो मदद फरमाइए। ये सुनते ही हजरत फातिमा की आंखें छलक पड़ी। नर्म दिल माँ की आंखों में आंसू उतर आए। उन्होंने बड़ी शफकत से फरमाया, भाई सलमान, मेरे घर में भी कुछ नहीं है। मेरे छोटे छोटे हसन और हुसैन भूख से तड़प रहे हैं, मगर मेरे पास उन्हें देने के लिए भी कुछ नहीं। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, हाँ, मेरे पास एक पुरानी ओढ़नी है जिसे मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। आप ये ले जाइए, किसी यहूदी के पास इसे बेच दीजिए और जो दाम मिले उससे आटा खरीदकर इस नए मुसलमान भाई के लिए खाने का इंतजाम कर दीजिए। ये सुनते ही हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु ताला अन्हु और वो नया मुसलमान भाई दोनों फूट फूट कर रो पड़े। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की ये सखावत, ये ईसार और ये त्याग देखकर वो दोनों हैरत और कदर से भर गए, जैसे दिल ने गवाही दे दी हो कि ये कोई मामूली बात नहीं। वाकई हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने दुनिया के सामने जो दान, त्याग, सब्र और सखावत की मिसाल पेश की, वो रहती दुनिया तक सुनहरे हुरूफ में लिखी जाती रहेगी। और सोचो, अगर हम सब अपनी हैसियत और अपने हालात के मुताबिक बेसहारा, गरीब और मोहताज की मदद करें तो ये दुनिया कितनी ज्यादा खूबसूरत बन सकती है। अगर हम सब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की तरह रहम दिल, सखावत पसंद, सब्र करने वाले और देने वाले बन जाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, करम और किरदार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो यही हमारी दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा जरूर लिखें। शुक्रिया।